नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। बस 10 बजने ही वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैट ट्रेड निफ्टी पर होता हुआ हल्की सी मुनाफा वसूली, लेकिन कोई भी चिंता का विषय नहीं। फ्रंटलाइन काउंटर्स में अच्छा मोमेंटम, चाहे वो एफएमसीजी स्पेस में हो चाहे आईटी स्पेस में हो। 40 अंक नीचे निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लगभग 23 अंक का हल्का सा लाल निशान बैंक निफ्टी पर और 121 अंक नीचे आपको निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आता हुआ दिख रहा है। रेट साहब ज़रा लेके आइए LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट स्क्रीन पर। कुछ ही समय बाद हमारे साथ श्री विश्वनाथ गौड़ साहब, जो कि MD और CEO हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के, आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर जो नतीजे आए थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिखेगा। वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और प्रोविजनिंग, ये दोनों बढ़ते हुए दिखे हैं। हालांकि रेवेन्यू आपके सामने लगभग 40% बढ़ा है चौथी तिमाही में। स्टॉक सेलिंग प्रेशर में है, यहाँ पर हम एक सेल कॉल ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। और आपके सामने नतीजों पर क्या रिएक्शन है, ये आगे आने वाली ग्रोथ पर टिप्पणी करते हुए दिखेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO श्री विश्वनाथ गौड़ साहब। गौड़ साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, और CNBC आवाज़ पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके सामने चौथी तिमाही के परफॉर्मेंस के आंकड़े ग्राफिक्स के रूप में चलते हुए दिख रहे हैं। बताइए, सन 2022 के लिए क्या आउटलुक है ओवरऑल ग्रोथ का LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए? As far as what you call our results for the Q4 are concerned, the revenue from operations has gone up by 1%, as a marginal increase. Then net interest income has gone up by almost 33%. And then loan book also has increased by more than 10% roughly. So these are the just highlights about that last quarter. And especially last quarter, business driver was very good. The growth in disbursement was nearly 97% over the last year quarter. So these things were the main attractions. And then across the region, there is a good performance throughout India. Then again, coming to the, if you look at the current year, of course, you are asking about current year. This year, what happened now, of course, the Q1 is concerned. Unlocking is now slowly now here and there happening. And then we are very hopeful that like last year, there will be a good surge in the sense what you call revival in the activity in the days to come. And we expect a good turnaround in our volumes also, probably from next quarter onwards. That's what we're looking at. And the driver, like last year, definitely will be the affordable housing segment. There we're a very strong player. So I think that added nearly more than 1/3 of our volumes come from this segment. We will definitely focus on this. सर, ये चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि NIMs की ट्रेजेक्ट्री क्या रही, लोन ग्रोथ कैसी रही, और रेस्ट ऑफ द फिस्कल के लिए जो लोन ग्रोथ है उस पर आपका आउटलुक क्या है? रियल स्टेट पर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है, तो ऐसे में आपकी लोन ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्टिव हैं वो क्या कहते हैं, आई मीन रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए? Net interest margins, if you look at what happened, of course, for nearly 4 or 5 quarters, it is almost all at the same rate, hovering around 2.3 to 2.5 range. So I think the last year, because the borrowings, cost of borrowings also have come down, and we're very much hopeful that definitely will maintain this trend in the quarters to come also. And then other things, I think more or less like last year, there will be a good what you call uptick in the demand for housing. चलिए गौड़ साहब, चर्चा हुई NIMs की, लोन ग्रोथ की, और आपने बढ़िया आउटलुक दिया सन 2022 के लिए। अब ये बताइए कि पिछली तिमाही में क्या रीस्ट्रक्चरिंग डिटेल्स रही लोन्स की, और कौन कौन से ऐसे रिक्वेस्ट्स हैं जो आपको लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आते हुए दिख रहे हैं स्टैंड स्टिल अकाउंट से? Restructuring actually under OTR 1, if you look at like last year also we could actually accommodate most of the people who had really applied for that, and then we have enabled that. And now OTR 2 also is now government has announced. So if you look at that now, both on the retail segment as well as the what you call developer loans, last year we had given around I think more than 600 crores as far as the OTR 1 was under OTR 1. The restructuring was done last year to the tune of nearly I think more 700 crores was done, nearing 600, actually 700 crores was done. So this year also suddenly
And now it has been extended. Mostly people, those who availed last time also can want some more time extension, that can be definitely considered. And similarly, under the what we call retail segment also, there will be what we call some good numbers. Still, it is now we have enabled that one through our web. We have kept the policy in place, so a customer can apply online through our web portal. So these things definitely will be taken care, and then whoever applies, that we will definitely provide. सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे मैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली रियल स्टेट स्पेस में इस सेक्टर में आपको मोमेंटम लग कैसा रहा है इस वक्त? वो मोमेंटम जो हमने लास्ट फिस्कल के आप देखें, जो थर्ड फोर्थ क्वार्टर में देखा, वो आपको क्या अभी भी विजिबल है? और जो डेवलपर्स की तरफ से जो फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट थी और रिक्वायरमेंट्स थी, उनका ट्रेंड क्या कह रहा है इस वक्त? Developer financing is concerned, of course, our loan book size is very low, very small, may not be very high. We are having only 7% loan book with us under the developer loan. And then last year also what happened actually, because of this pandemic and all, there was not that much what you call uptake in these projects because of a lot of other actually challenges they had to face. And then coming to the current year, also probably after Q2, what we see, there may be definitely a what you call revival in the activity. Then there will be good demand. Even the what you call ready-made houses which are available also now had been sold out almost all by 20 to 25%. I am very sure that there will be good demand for the housing sector in the days to come, especially from Q2 afterwards onwards. चलिए, काफ़ी चर्चा हुई निम्स की, ग्रोथ आउटलुक की और एनपीएस की। रियल्टी सेक्टर पर भी आपने गौड़ साहब अपना राय व्यक्त किया। ये बताइए कि सन 2022 के लिए क्या आप अपना लक्ष्य साध रहे हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ का? क्या टारगेट है आपका? Growth concerned, actually we are growing at a steady growth for the past 2-3 years, and this year also we envisage at least minimum 10% plus. That means double-digit growth that we are looking at, loan book size across the segments. And what you call this time, actually the rates of interest also low. The supporting factors are many. Even there is a good surge of demand in the tier 2, tier 3 cities also. Then our channels are in good place, and our digital journey, what we have taken up through our Home app and also through our project RED, these things will definitely enable a better what we call operational efficiency at all levels in our offices. So I am very sure that these things will enable us to perform better than last year in the days to come. चलिए, ये आपके सामने एक बहुत ही शानदार फंडामेंटल व्यू आता हुआ दिख रहा है विश्वनाथ गौड़ साहब से। आप एमडी और सीईओ हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के। गौड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और CNBC आवाज़ के दर्शकों को ये शानदार आउटलुक दिया सन 2022 के लिए। एक नज़र डालते हैं स्टॉक प्राइस पर। दिन के न्यूनतम लेवल लगभग 508 रुपये के आसपास, 510 रुपये के आसपास ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कॉल हम लोग पोजिशनली ट्रैक कर रहे हैं इस काउंटर के लिए। चलिए अब जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से और स्वागत करते हैं कविता जी का। कविता जी, 10 के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। बताइए कौन से ऐसे 2 टेक्निकल कॉल्स हैं जहां पर आपकी नज़र है फिलहाल? Very good morning, Shalji. Good morning, everyone. Well, अभी मार्केट थोड़ा प्रेशर में है और कुछ वोलेटिलिटी हम लोग आफ्टर कर सकते हैं। सो काउंटर्स जो अभी नजर में है, दैट इज PFC एंड REC दैट आर परफॉर्मिंग वेल। PFC में जो शेयर की हूँ, शायद नियर टू अबाउट टारगेट 132 133 के टारगेट्स के लिए हम लोग आफ्टर कर सकते हैं। बट जो कॉल की एक्टिविटी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हम टारगेट्स को 135 136 के टारगेट्स के लिए PFC को आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए, दैट शुड बी 128। सो PFC इज लुकिंग गुड। एंड अनदर काउंटर UPL को देखा जा सकता है। UPL अपने पिवट्स के पास एक अच्छा थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। मुझे लगता है 841 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड इज ओपन अप टू 865। वेयर इज PFC के साथ यूजुअली REC भी परफॉर्म करता है और 3-4 दिन की गिरावट के बाद ये दोनों काउंटर्स आज परफॉर्म कर रहे हैं। सो REC को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। ओके, REC, PFC, UPL, ये 3 स्टॉक्स अगर आप देखें, आपने मेंशन किया अभी यहाँ पे UPL का आपका टारगेट 865 का। चंदन,
आपको कैसा लग रहा है इस वक्त बाजार, और लॉन्ग ट्रेड्स पे आपकी राय क्या है, और निफ्टी पे कौन सा लेवल क्रिटिकल रहेगा, और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स? जी वीरू, देखिए बाजार ने जो ओपनिंग दी है उसके बाद में ये 15,880 का हाई बना है, ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखा है। हमारा ऐसा मानना है कि 15,750 के आसपास वापस स्टेबिलिटी ले लेगा, तो उन लेवल के आसपास से वापस बाजार में बाइंग रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप यदि लेवल्स की बात कर रहे हो तो आज 35,000 एक इमीडिएट सपोर्ट काम करेगा। तो 15,750 निफ्टी में और 35,000 बैंक निफ्टी में अहम लेवल रहेंगे, जो बाजार को रिसेंट का जो हल्का सा डिप आया उसको अरेस्ट करके और वापस बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति में तब्दील करेंगे। ट्रेडिंग एरियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा लक्ष्मी केमिकल, एलएक्स केम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जो अभी रिसेंटली काउंटर लिस्ट हुआ है 4 महीने पहले। इस स्टॉक ने पिछले लगभग 15 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 15 दिनों से ये 230, 31, 32 के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, और आज हिसाब से एक पॉजिटिव ओपनिंग होके हायर बेस के साथ में 232 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लग रहा है इस काउंटर में ब्रेकआउट होके और इसके जो रिसेंट हाइज है वो टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो लक्ष्मी केम में खरीदारी की सलाह है। 227 का स्टॉप लॉस, 242 के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। सेकंड ट्रेड रहेगा वो एफएमसीजी पेक रहेगा। निफ्टी एफएमसीजी पेक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई बना रहा है, और आप देखो कि सेलेक्टिव एफएमसीजी पेक ने मेजर सपोर्ट लिया है और कुछ ने ब्रेकआउट दिए। तो मैं यहाँ पे एचयूएल को सिलेक्ट करूंगा। एक परफेक्ट बुलिश कैंडल कल बना, आज भी एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ में अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो एचयूएल पे खरीदारी की सलाह है। 2370 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 2480, 2490 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। चलिए, ये 4 स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, और लॉन्ग साइड पर मोहर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स केमिकल पर चंदन जी दूसरे टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर चर्चा आशीष चतुर्मोता साहब ने भी करी थी। ये एक जानी मानी कंपनी है जो फिलहाल लिस्ट हुई है पिछले 4 महीने में, और इसके अक्सर आंकड़ा जो किया जाता है या मुकाबला किया जाता है जुबिलिएंट इंग्रेविया के साथ। इन दोनों काउंटर्स पर आपको ध्यान देना है। कौन कौन से सीमेंट स्पेसेस में आपको तेज़ी आती हुई दिख रही है, डायरेक्टर साहब लेके आइए। गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड GSCL आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर 47 रुपये का प्राइस है, और ये ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ज़बरदस्त। स्टॉक अपने बुक वैल्यू के पास आया है बड़ी मुश्किल से 2 दिन की मेहनत कर कर। बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चंदन जी, ये कॉल आपके लिए है। गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड, बताइए क्या कीजिएगा। 47.40 का भाव है, और ये आपने कम से कम जो ब्रेकआउट आता हुआ देखा है, जनवरी में ये प्राइसेस थे तो 6 महीने का हाईएस्ट लेवल, और आप बहुत ही लंबी चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि लगभग आपके सामने 200 महीने का मूविंग एवरेज टूटता हुआ दिखा है। 47-45, बताइए क्या कीजिएगा। जी सर जी, 7 सालों का ब्रेकआउट ये काउंटर में देखने को मिला है। 2014 में 46-50 के आई थे, और वो हाई अब निकलते हुए बन रहे हैं। और जिस हिसाब से वीकली सेटअप है, एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। आप चाहे उसको राउंडिंग फॉर्मेशन बोले, या हल्का सा कप एंड हैंडल बोले, या फिर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या पोल एंड फ्लैग वीकली में बोले, तो मल्टीपल प्राइस पैटर्न्स के ब्रेकआउट प्लस स्टॉक लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में पहुंचा है। तो काफी अच्छा मूव बनना चाहिए। स्टॉक में 15 से 20% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है। 7 साल का ब्रेकआउट है, तो ऑलरेडी ये उन लेवल पे आ चुके हैं अपने जो न्यू हाइस पे है। पुराने जो वीकली स्विंग आई है 45-50, वो भी अभी रिसेंटली सरपास किए। तो पॉजिटिव बायस बिल्कुल यहाँ पे रहेगी। आपको 44-50 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए, 53 रुपए और 60 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। और इन 60 रुपए का जो पोजिशनल टारगेट है उसके पीछे एक कारण ये है कि ये ज़बरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और यहाँ पर जो आप टॉप लाइन देख रहे हैं वो है लगभग 600 करोड़ के आसपास। पूरे के पूरे मिड कैप सीमेंट में बहुत बढ़िया रैली है, और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 390 करोड़ के आसपास। वैल्यू डिस्कवरी आपको बहुत बढ़िया होती हुई दिखेगी मिड कैप सीमेंट काउंटर्स में, चाहे वो श्री दिग्विजय हो जो हम लोग लगभग 40 रुपये से ट्रैक कर रहे हैं, या गुजरात सिद्धि सीमेंट लिमिटेड हो जो आपके सामने अब 48 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, इस बीच अगर आप देखें इंडेक्स जब अब अपने बेस पे रेस्ट ले रहा है 15,819 इनिशियली, अगर आप देखें स्पाइक के वक्त बाद फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मूव नज़र आ रहा है। डायरेक्टर साहब ग्लेनमार्क रखिएगा स्क्रीन पे, डॉक्टर एडीज रखिएगा स्क्रीन पे। डॉक्टर एडीज आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। एक बार क्या करते हैं, ज़रा देखते हैं कि इंडेक्स ऑप्शंस में क्या हो रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर्स में क्या हो रहा है।
आपका फार्मा में अगर आज की आप ओआई गिनर्स की शीट्स को देखें, आई मीन जहाँ पे इस वक्त तक यानी करीब 10:12 तक ओआई बिल्डअप हुआ है, उसमें आप देखिए फार्मा स्पेस में टॉप ओआई गिनर है करीब आप समझ लीजिए कि लॉन्ग साइड पे ग्लेनमार्क करीब 0.5% का, सन फार्मा करीब 1.25% का, ये 2 स्टॉक्स हाई निशान में है। और डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप देखें ओआई बढ़ा है 1% का। चंदन, डॉक्टर रेड्डीज पे आपका टेक, ये भी अगर आप देखें बहुत अच्छे जोन पे बैठा हुआ था, आज का लो 20 डे में है और यहीं से अगर आप देखें इसने परसों भी पुल बैक दिया था यानी 11 जून को। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, डॉक्टर रेड्डीज को और ग्लेनमार्क जो कि फार्मा स्पेस में लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचते हुए? जी देखिए, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी का 5512 लाइफ टाइम हाई है और अभी 2 दिन पहले इसने 5515 का लेवल बनाया, तो नए लाइफ टाइम हाई अभी बने हैं। उसके बाद में स्टॉक ने थोड़ा सा रेस्ट लेके और डिप बनाया और उस डिक्लाइन में भी मेजर सपोर्ट को रीटेस्ट किया है। कुछ दिन पहले 5350 5345 से एक हर्डल होता था और आज का लो लगभग 5340 है, तो एक मेजर लेवल से टर्न हो रहा था। मेरे हिसाब से आज का लो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 5350 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए यहाँ पे 5650 के टारगेट के लिए। उसके अलावा आप ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क में भी काफी अच्छा सेटअप है। लग रहा है 2-4 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट हो रहा है। 4 दिन से काउंटर अपने आप को 633 635 के जोन को होल्ड कर रहा है, तो 635 एक सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 670 के टारगेट के लिए। तो डॉक्टर रेड्डी काफी अच्छा लग रहा है मोमेंटम के लिए। ग्लेनमार्क में भी पॉजिटिव बायस के साथ कामकाज कर सकते हैं। ग्लेनमार्क में भी आप देखें आप पॉजिटिव बायस के साथ टाइम कर सकते हैं। एक सुबह स्टॉक पकड़ा था हमने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, वो डे हाई पर आके फ्लो करता हुआ और दिन के शिखर पर अगर आप देखें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आके ट्रेवल कर रहा है। लेकिन टाटा कंज्यूमर डे हाई पर है, अच्छा खासा मूव इसने भी दिया है। आईटीसी अच्छा करता हुआ। सरकारी कंपनियों के खेमे में आज एक कॉनकॉर में हलचल है। मैं अभी सिर्फ एक चार्ट चेक लूंगा, याद रखिएगा मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, पिक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन कविता आप जरा कंटेनर कॉर्प को देखिएगा, इसका हाई था उस दिन करीब समझ लीजिए कि 748 रुपये का। उसके बाद चला गया ये रेस्ट मोड में। रेस्ट मोड डिफाइन कर रहा है इसका 20 डे में, जहाँ पे 3 दिन से रेस्ट ले रहा है। 3 दिन से इसका लो 20 डे में ही है और 3 दिन से इसका हाई एग्जैक्टली आप देखें 10 डे में है। एक टिपिकल रेस्ट टेकिंग एक्सरसाइज का एक सिग्नल होता है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? यस वीरेंद्र जी, अगर कंटेनर कॉर्प को देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये 642 के ऊपर निकला था और अभी फिलहाल 2 या 3 दिन की अगर इसकी एक्टिविटी देखें तो अपने 20 डेज एसएमए और 10 डेज एसएमए के बीच में फिलहाल स्टक है। तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है क्योंकि एक अच्छे साइडवेज रेंज के बाद स्टॉक ने एक वापस पुल बैक दिया है। मुझे लग रहा है 702 के लेवल्स वंस ये जब क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट हम फर्दर आते हुए देखेंगे। सो पोजिशनल बेसिस पर कमेंट करना चाहूंगी 702 के ऊपर अगर अच्छा मेंटेन रहता है तो स्टॉक में पोटेंशियल है 730 तक के लेवल्स जो कि इसके प्रीवियस हाई होंगे वहां तक ये रीच करेगा। सो अबाउट 702 इट इज लुकिंग गुड। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल होगा। 665 का एक ऐसे लेके पोजिशनली 702 के ऊपर कंटेनर कॉर्प को देखा जा सकता है। इस बीच अगर आप देखें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो पीएफसी पे कॉल ली थी अगर आप देखें कविता ने, और वो अच्छा करती हुई डे हाई के जोन में है। कविता, आपका टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगी या फिर कैरी करेंगे अभी? और डॉक्टर रेड्डीज भी डे हाई पर आ गया जो चंदन ने टिप्पणी करी थी, लेकिन आपसे मैं पीएफसी पर राय चाहूंगा। Well, those who have taken like 135, 140 की कॉल में अच्छे पोजीशंस बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं। ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस को 132 पर और पोजीशन को 135 के 137 के लेवल्स के लिए फर्दर कैरी कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे चंदन जी से और कविता जी से कौन कौन से बढ़िया टेक्निकल इंडिकेटर्स उनको पसंद आते हैं जब बाजार रिकॉर्ड हाई पर होता है। लेकिन कुछ चार्ट चेक्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। डायरेक्टर साहब वापस लेके आइए गुजरात सिद्धि सीमेंट का चार्ट। अब आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ दिख रहा है 48 रुपये 20 पैसे का। बढ़िया मूव है ये। और अब आपके सामने जो वॉल्यूम है वो है 26,23,000 शेयर, जो कि हाईएस्ट लेवल आप देख रहे हैं 20 मई से। अब लेके आइए स्क्रीन पर स्मार्ट लिंक का चार्ट। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बढ़िया तेज़ी आपको आती हुई दिख चुकी है। तो फिलहाल चार्ट चेक तो क्या ही कीजिएगा, 113.10 का प्राइस है और ये काउंटर लगभग 13% आपको बढ़ता हुआ दिख चुका है। वॉल्यूम भी बढ़िया है, आपके सामने लगभग 2.25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं फिलहाल स्मार्ट लिंक नेटवर्क्स के। तो ये छोटे और मंझले खिलाड़ी हैं जो आपको बढ़िया मूव स्क्रीन पर लाते हुए दिख रहे हैं।
एक बहुत ही हाई टिकट आइटम है, जब चलता है तो बहुत बढ़िया मूव देता है और ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। मैं सिर्फ आपको प्राइस स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, मूव अच्छा है। डायरेक्टर साहब लेके आइए वैबको का चार्ट। वैबको इंडिया आपके सामने 7020 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कोई खास वॉल्यूम नहीं है और वॉल्यूम से पहले कम से कम आपको प्राइस का मूव आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक्स जहां पर बढ़िया तेजी है। बिकवाली कहाँ आती हुई, मुनाफा वसूली आपको माइंड ट्री पर आती हुई दिखेगी। ये काउंटर आपको अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2444 पर। कोई भी चिंता का विषय नहीं है और वो इसलिए क्योंकि अगर आप जून का ही महीना देखें तो आपके सामने जो इनिशियल प्राइस था जून के शुरुआती सत्र में वो था लगभग 2362 और वहाँ से आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। और अगर आप सन 2021 का परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर माइंड ट्री पर लोएस्ट लेवल था 1565, वहाँ से 2444 पर आपने बढ़िया मूव आते हुए देखा है। ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हल्की मुनाफा वसूली चल रही है। यही कहानी यूनाइटेड ब्रूरीज पर है, आपको 1360 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और आपको हल्की सी मुनाफा वसूली कोफोर्ज पर भी होती हुई दिखेगी। यहाँ पर बहुत मुनाफा टेबल पर था और कुछ पैसा अब आपको अकलमंद ट्रेडर्स घर ले जाते हुए देख रहे हैं। तेजी गुजरात सिद्धि सीमेंट में देखते ही बनती है 39 रुपये 50 पैसे प्राइस। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें अच्छा स्विंग इस स्टॉक ने दिया है और डे हाई की टेरिटरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और कुछ स्टॉक्स को देख लीजिए जहाँ पे अगर आप देखें अच्छा मूव है। फार्मा का हमने जिक्र किया, उसमें अगर आप देखिए सन फार्मा भी अब डी हाई पे फ्लोट करता हुआ। चंदन, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बाजार पे भी डिप है और एक कंट्रोल डिप है। इस कंट्रोल डिप पे आप क्या लेना चाहेंगे रेस्ट ऑफ द डे के लिए? कहते हैं ना, जो रिस्क को बाय करता है रिवॉर्ड उसी को मिलता है। HPCL डे हाई पर है। आज बैंक निफ्टी कुछ भी हो, कुछ भी हो, कॉन्फिडेंस सा दे रहा है चंदन। एक वो जो 300 का कॉल राइटर था 350 360 तक का उसने स्कोप दिया, लेकिन उसके बाद थोड़ा डिप आ गया। बैंकिंग में क्या पिक करना चाहेंगे, लोअर लेवल्स पे या फिर पूरे बाजार में लोअर लेवल्स पे आप इस बेस जोन के आसपास क्या पिक करना चाहेंगे? जी देखिए, मैं एक्सिस बैंक को पिक करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि एक्सिस बैंक यहाँ पे मोमेंटम दिखाएगा और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 2 दिनों से काफी अच्छा प्राइस पैटर्न होल्ड कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है कि स्ट्रेंथ है और बाइंग का जो मोमेंटम है, आप पुट राइटिंग के इंडिकेशंस भी इस स्टॉक में देखते हुए नजर आएंगे। तो एक्सिस बैंक यहाँ पे प्रिफर्ड पिक हो सकता है बैंकिंग में, जहाँ पे हमारा मानना है कि 775 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो लगभग 742 के स्टॉप लॉस से 775 तक के लिए एक्सिस बैंक देखा जा सकता है। उसके अलावा यदि आप डिक्लाइन, बाय ऑन डिक्लाइन की बात करो तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को 15800 750 के जोन में अरेस्ट कर लेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे 15800 की कॉल पे ट्रेड कर सकते हो। अब ये 73 के आसपास चल रही है, इसको 65 रुपए 62 रुपए के आसपास आने दो, वहां से ये सीधा 90 से 100 रुपए के टारगेट बनाती हुई नजर आ सकती है। चलिए, आपके सामने फिलहाल काफ़ी सारे स्टॉक पिकिंग हो चुकी और 2 प्रश्न जो मुझे एक एक पूछना है कविता जी से और चंदन जी से, वो ये है कि हम बढ़िया मोमेंटम चंदन जी देख रहे हैं फिलहाल बाजार में। कोई भी फ्रंटलाइन इंडेक्स उठा लीजिए, वहाँ पर आपको तेज़ी दिख रही है। निफ्टी का IT इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर, FMCG रिकॉर्ड हाई पर, 100 200 500 निफ्टी के जो इंडिसेस हैं वहाँ पर भी आपको तेज़ी दिख रही है। ये बताइए कौन सा एक ऐसा इंडिकेटर है जो कॉन्ट्रा आपको ओपिनियन देता है स्क्रीन पर और पहले ही बता देता है कि चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स हो वहाँ पर आपको हल्की सी गिरावट आती आई दिख सकती है? तो या तो हमारे जो निवेशक और ट्रेडर्स हैं वहाँ पर मुनाफा बुक कर लें और जो शातिर ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर शॉर्ट कॉल लें। कौन से ऐसे 1-2 इंडिकेटर्स जो आपको कॉन्ट्रा कॉल देते हैं तेज़ी में? जी सेल जी, देखिए आपने कल काफी अच्छा डिस्कशन किया था और कल जो आपने कुछ इंडिकेटर्स की बात की, स्पेशली टॉप टू डाउन अप्रोच की टेक्निकल में, उसको मैंने भी आपके ट्वीट को रीट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पे किया और लोगों ने काफी सराहा। तो ये काफी अच्छा ये पहलू आप कर रहे हो। अब हम जो आपके सवाल के जवाब में बोले, देखिए मैं 2 इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूं, एक टेक्निकल सेटअप पे और दूसरा डेरिवेटिव सेटअप पे। तो पहले डेरिवेटिव सेटअप की बात करूं तो यूजुअली कॉन्ट्रा जो इंडिकेटर्स है, मैं RSI के डाइवर्जेंस से फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूं। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक ऑसिलेटर है जो एक रेंज में घूमता है। टेक्निकल में मैं इस इंडिकेटर को यूज करता हूं। काफी लोग इसको 30-70 बोलते हैं, बट मैं इसको ओनली ओवरबोट और ओवरसोल्ड के लिए यूज करता हूं और इसको टाइमली यूज करता हूं। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट चल रहा है और आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ नई स्ट्रेंथ दिखा रहा है,
तब वहां पे सिग्नल मिलते हैं कि आपकी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट करनी चाहिए, और या फिर गिर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं बॉटम पिकिंग के अप्रोच देते हैं। तो RSI एक लीडिंग इंडिकेटर्स है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पहले इंडिकेशन देने का प्रयास करता है। वहीं डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो मैं पुट कॉल रेशियो को क्लोजली ट्रैक करता हूं, स्पेशली इंडेक्स की स्ट्रेटेजी के लिए, और आप देखोगे मैं पुट कॉल रेशियो और इंडेक्स के डाइवर्जेंस को फॉलो करता हूं। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे कल निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाया था, बट उसके बावजूद भी निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.42 था। जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो पुट कॉल रेशियो बढ़ना चाहिए, जबकि 2 दिन में पुट कॉल रेशियो 1.42 के आसपास अनचेंज्ड है, उसका इंडिकेशन है ऊपर में कॉल राइटिंग हो रही है, इसके लिए अपसाइड रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये 2 इंडिकेटर RSI टेक्निकल में, पुट कॉल रेशियो डेरिवेटिव्स में मैं यूज करता हूं कॉन्ट्रा व्यू फाइंड आउट करने के लिए और मोमेंटम पिक करने के लिए। ये हमारे जो नए नए दर्शक जुड़ रहे हैं और जो CDSL में लाखों डीमैट खोल रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, चंदन जी की इस राय से ज़रूर हर्षित होंगे। कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, एक ऐसा इंडिकेटर जो आप प्लॉट करती हैं ये देखने के लिए कि बाज़ार में अगर तेज़ी है वो कब आपको मंदी में तब्दील होती हुई दिख सकती है, उस इंडिकेटर के बारे में कुछ बात शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। यस शैल जी, जिस तरीके से अभी चंदन सर ने भी डिस्कस किया, यूजुअली मार्केट में इंडिकेटर्स मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ यूज किए जाते हैं। अगर मार्केट हाइस पर है और कॉन्ट्राबैट्स की भी अगर आप बात कर रहे हैं, जनरली इन द बुलिश मार्केट हम लोग लीडिंग इंडिकेटर की तरह RSI को यूज करते हैं, बट अगर मार्केट हाइस पर है और वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ RSI एंड बॉलिंगर बैंड को मैं यूज करती हूँ। इन केस इफ द बॉलिंगर बैंड अपने अपर बैंड की तरफ बढ़ चुका है और एक कॉन्ट्रा क्रॉसओवर हमें शो करता है, अलोंग विद दैट मुझे सेलिंग सिग्नल चाहिए ऑन द RSI टू, एंड द थर्ड चेक होता है ऑन द प्राइस चार्ट टू। अगर इंडिकेटर्स तब तक काम नहीं करते बिकॉज इंडिकेटर्स एवरेजेस हैं और प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग ही बने हैं, सो सिर्फ इंडिकेटर को देख के तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, बट यस ये एक लीडिंग इंडिकेशन देते हैं। एंड आई यूजुअली वेट करती हूँ तब तक जब तक मुझे तीनों जगह, मेरे बॉलिंगर बैंड पर, RSI पर एंड इवन ऑन प्राइस चार्ट, तीनों पर जब सेल इंडिकेशन है तो मैं कॉन्ट्रा बैट वहां से यूजुअली लेती हूँ, सो दैट रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल बना रहे। दैट इज व्हाट इन कॉन्ट्रा बैट फॉर, अगर मैं वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट में आफ्टर अ बिग अप मूव, देन ओनली। चलिए, तो इन तीनों चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है अगर आप बाज़ार में पहला कदम उठा रहे हैं। तो PC रेशियो और डाइवर्जेंस पर ध्यान दीजिए चंदन जी के अनुसार, और बॉलिंजर बैंड्स पर आपको ध्यान देना है कॉन्ट्रा कॉल्स के लिए। ये कविता जी आपको राय दे रही हैं, ये आपका होमवर्क है। आज रात जब आप मोमबत्ती जलाएं पढ़ाई के लिए तो आप इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। समय समाप्त हो चुका है 10 के दमदार ट्रेड्स का। चंदन जी और कविता जी आपका बहुत बहुत आभार। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया मोमेंटम बाज़ार में कम से कम मिड कैप सीमेंट में आता हुआ दिखेगा और अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की कमान पकड़ते हुए दिखेंगे प्रदीप जी, जो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट हैं और उससे बेहतर पकड़ उनकी फंडामेंटल्स पर है। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शैल जी। मैं तो कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद चंदन सर को और कविता मैम को, उन तमाम दर्शकों की ओर से जिन्होंने आज बहुत कुछ सीखा होगा। अब ये आप कल क्या लेने वाले हैं सिलेबस, वो पहले से बताएंगे क्या? तो लोग थोड़ा कॉपी पेन लेकर तैयार रहेंगे और इसी टाइम पे रोज बताएंगे तो इसी टाइम पे तैयार रहेंगे, क्या कहते हैं आप? जी, आपने सही फरमाया प्रदीप जी। अगर आप कहें तो ये हम लोग एक सेक्शन शुरू कर सकते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स का, और चलिए तो कल से 10-20 पर प्रदीप जी की बात पर अमल किया जाएगा और पहले ही आपको बताया जाएगा कि कौन से इंडिकेटर्स पर चर्चा होगी। ओवर टू यू प्रदीप जी। थैंक यू। तो फिलहाल बाजार पे नजर डालिए और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह से ज्यादातर एक्सपर्ट्स की नजर जिस आंकड़े पे थी 15,800 का लेवल, वो फिसलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल एक कॉल लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अब से थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि अगर आपका कोई सवाल है और हाँ अगर आपके पास कोई ऑप्शन की पोजीशन है जिस पर आप कल ही एक्सपायर होने वाला है तो एक कॉल लेना चाहते हैं या अगले हफ्ते का है, हर सवाल का जवाब मिलेगा। #AskAwazFNO या #AskAwazCash, ये 2 हमारे हैशटैग हैं, इनको टैग करते हुए ट्वीट कीजिए। और जब तक आपके सवाल हमारे पास आ रहे हैं, आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।